Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and I have a very special guest with me joining me in this show. No, he's not a cricketer, but someone who is known to make accurate predictions about the game. Greenstone Lobo, an astrologer and a writer. Welcome to Cricket Next, sir. How have you been? I'm good, Soumya. Very nice to hear from you. Thank you so much for inviting me. I'm very good. How are you? I'm really good. I'm fine. Starting with with you. Can you just, for our viewers, can you just give tell us about yourself? How does this thing start? Because I was reading somewhere you were an HR professional earlier, and then you Yeah. do astrology. So if you can just tell me Sure, about sure. I'll talk about my journey. Actually, my interest in astrology started when I was like 16-year-old. So I'm a 50-year-old now, so you can calculate. So almost like I started when our cricket captain was born. Okay, in 1986-87 में शुरू किया था. Okay, so my interest in astrology was to know about people. But then as I and also actually to understand myself, like what will I do in life? वहाँ से शुरू हुआ था. But as the journey went on, my passion towards sports, especially cricket, really took over. And I was trying to understand, figure out, is there a way by which you can actually predict events? Cricket or any sports is very unpredictable. Is there a way we can actually predict events? Is what I started with, and I did some calculations in the 2003 World Cup, 2007 World Cup. So something started falling in place, and then I did a lot of research. And even before Dhoni was known to the people, I went all the way to his home in Ranchi, and I met his mother and I took his birth details. Okay, and then I said, "Oh man, ये बंदा हमारे लिए World Cup जिताने वाला है." Okay, but meanwhile I was doing a human resources job. I was in learning and development training and all that stuff. So for many years, so parallelly this is also going on. So it's a lot of passion into sports and into astrology, which has led me to this. And yeah. And how does this numerology thing works? As far as cricket is concerned, how do you make these predictions and Okay. so accurate? Because I was watching I was just going through your Instagram, and Aisha Shroff is really fond of your predictions that I saw on your feed. So how do you make those kind of predictions? Yeah, there are also so many other people who are who like my predictions, but they wouldn't name me because astrology is a very taboo subject. वो मैसेज पे तो पूछ लेंगे, भाई पता यार, बता कैसे चलेगा, क्या होगा, लेकिन वो कभी बाहर नहीं बताएंगे क्योंकि nobody wants to acknowledge an astrologer in their life. But yeah, ये बहुत अच्छा सवाल है आपने जो पूछा है कि how does it work? See, okay, what I do is astrology. Okay, तो जब मैंने शुरू किया था तो astrology जो है इंडिया में we only include five planets actually, so sun and moon जो है, they are not planets, they are luminaries, they are stars. And we include planets like Mercury, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, गुरु, बस वहाँ खत्म हो जाता है. Okay, 5 प्लैनेट. तो मैंने इसके भी आगे कुछ प्लैनेट्स है जैसे कि यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, उसको इंक्लूड करना शुरू किया. सी ये जो 2007 वर्ल्ड कप जो था ना, उसमें I mean, 2003 World Cup, I would say. Which one? The first one was, I mean, both of them were won by Australia. So I think Steve Waugh won the 2003 World Cup, right? 99. Sorry, 99 World Cup, yes. So 2003 was also one, yes. So, okay, correct. So, ये जो 99 का जो वर्ल्ड कप जो था ना, उस टाइम पे आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. ओके, तो मैंने देखा कि अर्जुन रणतुंगा वाज वेरी इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि उस दिन उस टाइम पे जितने भी क्रिकेट कैप्टन थे वहां पर उस 2003 वर्ल्ड कप में जो खेल रहे थे, एवरीबॉडी वाज बोर्न ऑन फुल मून. ओके, फुल मून डे, पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, बहुत शुभ दिन होता है. इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे. सो जैसे गुरु नानक, ही वाज बोर्न ऑन अ फुल मून डे. महावीर जो है, ही वाज बोर्न ऑन अ फुल मून डे. दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस वर्ल्ड कप में खेलने वाले सारे के सारे खिलाड़ी, ऑल द कैप्टन्स, दे वर ऑल बोर्न ऑन फुल मून डे. Or you can talk about Wasim Akram of Pakistan, Arjuna Ranatunga of Sri Lanka. It can be Brian Lara of West Indies. Some log, they were all born on a full moon day. So I said that तो मुझे जो कॉन्सेप्ट्स जो थे वो धीरे धीरे समझ में आने लगा. तो आई यूज्ड टू वर्क ऑन दीज प्लैनेट्स, शनि, शुक्र, मंगल, गुरु, एंड देन फुल मून. ठीक है, तो मैंने देखा कि फुल मून, द बेस्ट फुल मून जो था वो ब्रायन लारा का था. ओके, सो मुझे लगा कि शायद ब्रायन लारा जीतेगा. ओके, सो बट देयर वाज वन बाय स्टीव वॉग. सो उस टाइम पे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, गलत है, तो गलत हो रहा है. तो देन यू नीड टू गो एंड ऑलवेज चेक योरसेल्फ कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं. So then I realized that you need to find out planets which are beyond Shani, which is Uranus, Neptune, and Pluto.
तो उसमें मैंने देखा कि स्टीव वॉग वाज बोर्न इन द ईयर 1965। तो ये जो 1965 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि उसी टाइम में शाहरुख, सलमान, आमिर खान भी पैदा हुए, ठीक, जन्म लिए। देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रांग इन दैट ईयर। तो मैंने देन पता किया कि वो प्लैनेट जो है ना, वो नेपट्यून और प्लूटो दोनों बहुत ही रेयर फिनोमेनन होता है, जब दे रीच 25 डिग्रीज। That's a very, very rare phenomenon. Okay, so planets come into very rare positions. They come into 0 degrees, 10 degrees, 25 degrees. So जितने भी जो planets जो बहुत दूर हैं, जैसे Saturn की बाद वाले, Uranus, Neptune, Pluto, I include some 3 more bodies called as, I call them as planet X, Y, Z. Okay, तो ये सारे planets अगर हम include करते हैं, और वो जब 0 या 10 या 25 degrees में आते हैं, तो they produce some great players of extraordinary caliber. So if you look at सचिन तेंदुलकर का अगर आप चार्ट देखेंगे, तो उनका यूरेनस 25 डिग्री पे है, ओके, प्लूटो जो है वो 10 डिग्री पर है, और ये जो प्लैनेट एक्स वाई जी बोल रहा हूँ ना, वो सारे 25 डिग्री पर है, और सन 10 डिग्री पर है, मंगल 25 डिग्री पर है। तो ये इतना सारा 7-8 ग्रह जब इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है, तो एक सचिन तेंदुलकर का जन्म होता है। तो वैसे सो यू हैव लाइक सो ये जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी खिलाड़ी की कुंडली में एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, और एंड द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, they are born under such very great influences. तो ये मैंने पता करना शुरू किया, then पता चला कि कुछ पैचेस होते हैं जहां पर लोग जन्म लेते हैं। So उस आधार पर then I found that then मेरा पूरा रिसर्च से मुझे समझ में आ गया कि ये जो 2011 का जो वर्ल्ड कप जो जीतेगा, वो ऐसा कोई होगा जो 1981 में जन्म लिया हो, कि उस टाइम में यूरेनस जो है वो 0 डिग्री पर है, नेपट्यून 0 डिग्री पर है, प्लूटो 25 डिग्री पर है। तब मुझे लगा कि वो इट कैन बी द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, जो क्लार्क, माइकल क्लार्क, वो हो सकता है, दैट वाज हिज वरी, बट देन वो कैप्टन नहीं बने, और इंडिया के कैप्टन बन गए थे MS धोनी। सो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। देन आई प्रेडिक्टेड इन अ पेपर, DNA नाम का बहुत बड़ा पॉपुलर पेपर है, उस टाइम पर था, अभी वो बंद हो गया। तो उसमें एक हाफ पेज आर्टिकल आया था, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो वी आर लुकिंग एट 0, 10, 25 डिग्रीज ऑफ। ओके, चलिए, आपने जो पिछली बार इंडिया ने होस्ट किया था वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, तब की प्रेडिक्शंस तो बिल्कुल सही बताई थी सर। अब जो 2023 में जो 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड कप, उसके बारे में बात करनी स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि टूर्नामेंट जाने कैसे वाला है, कौन जीतने वाला है, पूरे टूर्नामेंट में क्या होने वाला है, 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होने वाले हैं, क्योंकि राउंड रॉबिन है तो सब एक दूसरे से भिड़ेंगे। इंडिया 9 मैचेस खेलेगा अगर सेमीफाइनल पहुंचता है उससे पहले, और पॉसिबल विनर कौन कौन से हो सकते हैं, एंड द विनर, हु कैन बी द विनर। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वो टीम कौन सी होने वाली है जो ये ट्रॉफी लिफ्ट करने वाली है, एंड किस हिसाब से आप किस कैलकुलेशन से वो चीज़ बताएं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके, सो अगेन लेट मी जस्ट गो बैक लिटिल, ये सेम थ्योरी जो मैं आपको बता रहा था। तो ये जो पैचेस जो है ना, जो ग्रेड्स का होता है, जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो होते हैं, तो पहला था वो 1981 का पैच, जिसमें धोनी का जन्म हुआ था। तो अगर आप वर्ल्ड कप देखोगे ना, सो 2011 जो है, दैट वाज वन बाय अ 1981 बॉर्न कैप्टन। के बाद वाला जो 2015 है, इट वाज वन बाय अगेन अ 1981 बॉर्न कैप्टन, व्हिच इज माइकल क्लार्क। ओके, सो अगर आप ये 1981 का पैच देखेंगे ना, सो देयर इज अ रोजर फेडरर इज अ ग्रेट इन टेनिस। देन एक इकर कैसिलास जो स्पेन का जो कैप्टन, जो 2 यूरो कप जीते हैं और एक वर्ल्ड कप जीते हैं, वो भी उसी टाइम के हैं। सो द ग्रेटेस्ट जो है उस टाइम में जन्म लिए। उसके बाद वो शिफ्ट होता है 83 पे। ओके, तो 83 पे देयर आर सम कैप्टन्स, ओके, बट देन वो वर्ल्ड कप जीते नहीं, क्रिकेट में तो नहीं जीते, बट वो 2020 वर्ल्ड कप जो जीतने वाला जो वेस्ट इंडीज का जो है डैरन सामी, वो 1983 के, वो 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ओके, 2020। तो उसके बाद राइट, तो उसके बाद जो 2016 जो वर्ल्ड कप था, दैट वाज वन बाय अ 1986 बॉर्न कैप्टन। ओके, अगर आप देखोगे तो विश्व भर में अगर आप इफ यू लुकिंग एट टेनिस, देन इट इज राफेल नडाल। ओके, अगर आप फुटबॉल का देखोगे, तो लास्ट वर्ल्ड कप जो है उसे जीता था 1986 का बॉर्न कैप्टन ऑफ फ्रांस, व्हिच इज ह्यूगो लॉरिस। सो वो पैच बन रहा है। एंड देन वर्ल्ड कप कौन जीता, हु वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, आयन मॉर्गन, जो 1986 बॉर्न है, इंग्लैंड के कैप्टन। ओके, और मेरा एक बुक आया था हाउसैट नाम का, जिसमें मैंने वो किताब में 6 महीने पहले आया था, वो वर्ल्ड कप के पहले, उसमें मैंने लिख दिया था कि आयन मॉर्गन ही जीतेंगे वर्ल्ड कप। ओके, सो ये बिकॉज ये कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा, अभी क्या होता है, अभी इस टाइम में क्या होगा,
जो लास्ट टाइम जो 1986 देखो हमेशा ऐसा होता है कि जो 86 बॉर्न कैप्टन होते हैं उसके बाद में उनको जो बीट करते हैं या उनको उनका जो सक्सेसर जो होता है ना वो हमेशा वो 87 बॉर्न होते हैं। ओके 87 बॉर्न कैप्टन होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर अगेन हम बात करेंगे, वी टॉक अबाउट टेनिस। टेनिस लास्ट द ग्रेटेस्ट जो अचीवर जो थे वो राफेल नडाल थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट उनके पास ग्रैंड स्लैम था। उनको अभी किसने बीट किया? नोवाक जोकोविच जो 87 के। ओके और फुटबॉल में लास्ट वर्ल्ड कप जीता फ्रांस के कैप्टन जो 86 बॉर्न है। इस बार वर्ल्ड कप कौन जीता? लियो मेस्सी, लायनल मेस्सी जो 87 बॉर्न है। ओके अभी आप अंदाज लगा लीजिए लास्ट टाइम 86 बॉर्न क्रिकेटर ने जीता था इंग्लैंड का, तो अब कौन है जो 87 बॉर्न है? राइट ये हमारे व्यूअर्स भी अंदाजा लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए आप बता दीजिए। ओके तो ये लॉजिक बन रहा है, तो ये जो लॉजिक है ना, सो दिस इज द क्रिकेटिंग लॉजिक, दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक। क्रिकेटिंग लॉजिक कुछ भी हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक ये है कि क्योंकि जो 1987 जो बॉर्न जो क्रिकेटर जो होगा वो 86 के बाद नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, तो उस हिसाब से आने वाला है। और जो ये जो 87 का जो पैच है ना, उसमें वो प्लैनेट जो वो नेपट्यून जो है वो 11 डिग्री पर है, प्लैनेट एक्स जो मैं बता रहा हूँ वो 10 डिग्री पर है, प्लैनेट जेड जो मैं बता रहा हूँ वो 10 डिग्री पर है, यूरेनस 25 डिग्री पर है। तो मतलब 5 ग्रह बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर है। और मैं इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। देखो कि पिछला जब वर्ल्ड कप हुआ था मैं बहुत दुखी था कि मुझे हर बार ये बोलना पड़ता था कि अरे भाई इस बार इंडिया नहीं जीतेगा, और जब भी मैं बोलता था ना इंडिया नहीं जीतेगा तो मुझे बहुत गाली सुनने पड़ती थी। ठीक है, तो इस बार मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि बहुत ही हाई चांसेस है, यू नो देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ग्रेट चांसेस फॉर इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप टुडे दिस टाइम, सिंपली बिकॉज वी हैव अ ग्रेट कैप्टन इन प्लेस। 87 बॉर्न कैप्टन दुनिया में विश्व भर में हमारे पास ही है, ठीक है, और कोई है ही नहीं। So that is the beauty. That is the reason I'm very, very confident. And if this happens, it's going to be a very, very beautiful story. You know, someone who was dropped from 2011 squad and then winning it at home. So it's going to be a very, very good story. And अगर cricketing perspective से देखूं, तो आपके हिसाब से India can be the winner and Rohit Sharma can, you know, join that elite list of Kapil Dev and MS Dhoni. Coming to the semi-finalists, who can be those 4 semi-finalists? Because as I said, you know, it's going to be a round robin. Everyone will be playing everybody. So 4 semi-finalists कौन हो सकते हैं? Yeah, correct. So ये जो सवाल जो है, ये बहुत बताना बहुत मुश्किल होता है कि सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे। यू नो जीतने वाला कौन है वो बताना बहुत आसान है। हमेशा क्या होता है, जो फाइनल में आके हारता है वो जरूरी नहीं होता है कि वो बेस्ट टीम है, सेकंड बेस्ट टीम है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से, यू नो, इट इज लाइक दैट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई फील एंड क्रिकेटिंग लॉजिक, that's how cricket works. That's how cricket works, right? So you probably जो लास्ट में आके हारते हैं फाइनली, दैट मस्ट बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट टीम, यू नो, बिकॉज़ दे आर द फर्स्ट लूजर्स। यू नो पहले जो हार गए तो ठीक है, यू नो। सो तो अभी लेट्स से दैट ओके, सो फाइन, इंडिया इज अ ग्रेट क्लियर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज़ 87 बॉर्न कैप्टन हमारे पास ही है। तो अभी लेट अस एलिमिनेट कौन सा टीम है जो जीत नहीं सकता है। और वो भी मैं बड़े टीम का नाम लेने वाला हूँ। ठीक है, बड़े टीम्स का नाम लेने वाला हूँ। सो पहला टीम मैं नाम लेने वाला हूँ जो जीत ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, वो है लास्ट टाइम का फाइनलिस्ट। ओके, न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड जो लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट थे। ओके, सो बेसिकली, यू नो, दे हैव केन विलियमसन हु इज द 1990 बॉर्न कैप्टन। उनका चार्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या है ना कि वो जो अगर हम पूरा टीम देखेंगे, द एंटायर टीम कंटेन्स प्लेयर्स जो 1992 में जन्म लिए हैं, काफी सारे लोग हैं, और वो एक छोटा सा जो टूर्नामेंट है वो जीत सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। जैसे कि ऑलरेडी वो WTC जीत चुके हैं, या सो दे हैव वन ऑलरेडी एन ICC ट्रॉफी। सो वो एक और बड़ा ICC ट्रॉफी जो है वो जीत नहीं सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो वेरी क्लियरली आउट। और अब मैं दूसरा एक बहुत बड़ा टीम, जिस टीम को लोग बोलेंगे कि दे हैव चांसेस आर वेरी वेरी हाई, मैं उसको एलिमिनेट करने वाला हूँ। सी अगेन, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि ये फाइनल में भी आ जाए, लेकिन वो हार जाएंगे। वो अगर वो इंडिया के अगेंस्ट आएंगे फाइनल में, तो मैं बोलूंगा कि इंडिया जीत जाएगा 100%। ठीक है, और जो दूसरा जो बड़ा टीम है जिसका जीतने का कोई चांस नहीं है, और वो है ऑस्ट्रेलिया।
आई वाज मेरे दिमाग में चल रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है। Okay. So Australia is like a big team. See, I mean, like आपको Australia is like a last time का like they are one of the super powers, और अगर आप उनको eliminate करना है तो you are thinking, there are cricketing का जो भी logic है, but astrologically, so the captain का जो chart है, I mean, he is born in 93, okay? So, he is born in 1993, तो 1993 born captain के लिए अभी समय नहीं आया है, okay? So देखो इस बार जो है, अगर आप मान लो कि 1987 बॉर्न कैप्टन है, तो अगला चांस अगर मिलेगा तो वो 1990 बॉर्न कैप्टन को मिलेगा, वो 93 बॉर्न कैप्टन को मिलने का चांसेस बिल्कुल नहीं होता। सो दैट इज द रीजन आई वुड से दैट ऑस्ट्रेलिया डोंट हैव एनी चांस। इनफैक्ट ये भी है कि उनका जो कोच है मैकडोनाल्ड जो है, वो भी 1981 के जन्मीय है, वो अब थोड़ा यंग है फॉर विनिंग वर्ल्ड कप, सो दैट इज अनदर रीजन। एंड द टीम जो है ना, उसमें ऑलरेडी जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, मतलब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, स्टीवन स्मिथ हो गए, सो दे हैव लाइक डेविड वार्नर, सो दे ऑलरेडी हैव सम प्लेयर जो दो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2020 भी जीत चुके हैं, ओके? सो दैट इज अनदर रीजन, थर्ड रीजन व्हाई दे कांट विन द वर्ल्ड कप। सो वेरी क्लियरली आई एम एलिमिनेटिंग देम। नाउ लेट्स गो टू अनदर 3 टीम्स। इंडिया तो है, उसके अलावा और कौन सा 3 टीम है जो बहुत ही पावरफुल है? ओके, द फर्स्ट टीम दैट आई वुड से इज साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका इज अ वेरी वेरी गुड टीम, वेरी पावरफुल टीम। इनका जो कैप्टन है वो 1990 बॉर्न है, तेम्बा बाउमा। इनका जो कोच जो है, द कोच इज आल्सो हैविंग अ वेरी गुड चार्ट, decent, मतलब I would say the coach is not having a great chart, but then okayish, okay kind of a chart। ये जो एंटायर टीम जो है बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकली वेल बैलेंस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंटली कैप्टन का चार्ट इंपॉर्टेंट है, वो 1990 बॉर्न है। सो चांसेस है इनके पास, ये नहीं कह सकते कि वो सेमीफाइनल आएंगे कि नहीं आएंगे, बट देन दे विल डू वेल। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड टीम। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टीम, वेरी पावरफुल टीम, ये टीम से हमेशा हमें वी शुड बी केयरफुल, सावधान रहना बहुत जरूरी है, एंड दैट टीम इज इंग्लैंड। ओके, so England का once again the captain is born in the year 1990। See, अगर इंडिया नहीं जीतता है, okay, इंडिया by chance, like I mean 1987 का लक नहीं आया, 1990 का लक आया, तो then if there is any captain who can win, देखो वो जोस बटलर है। देखो राजस्थान रॉयल्स जो है इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, उनके पास इतना अच्छा कैप्टन है, उनको कैप्टन नहीं बनाना है, और तो लेकिन ये जो जोस बटलर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आईपीएल अभी तक मतलब एज अ कैप्टन वो जीते नहीं है, और एक ही वर्ल्ड कप जीता है वो, उनके पास वो जो कार्मिक कोटा कुछ कोटा होता है जितना आप जीत सकते हैं वर्ल्ड कप्स, तो उसका कोटा अभी भी उनके पास बरकरार है। सो ही कैन स्टिल विन अ वर्ल्ड कप। सो इसीलिए वो थोड़ा डेंजरस ओपोनेंट है। ओके, लेकिन ये बात है कि मतलब क्या दोबारा वंस अगेन ऑलमोस्ट प्लेयर्स जो है ना, उनका स्क्वाड में ऑलमोस्ट सेम है जो लास्ट को वर्ल्ड कप जीते हैं। I mean, काफी सारे प्लेयर्स हैं, उनके बाद प्रिसाइजली कुछ 5 या 6 चेंजेस हैं पिछले वाले टीम्स। करेक्ट। और उनके पास वो आदमी तो है ही जो हमेशा फाइनल्स में जाके कुछ ना कुछ करता है। ही इज बैक। या बैक, ओके, ही इज बैक नाउ। तो बट देन वो बोलते हैं ना कि lightning doesn't strike the same place twice। So hopefully he will not do it, okay? And in the final, so I'm with Ben Stokes after that 2016 वाला fiasco against West Indies, उसके बाद वो lightning has been striking at the same place। वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, I mean he is everywhere। You're absolutely right, Soumya। So he's the one man you have to be. It's not the only person, actually the entire England team is very dangerous, so we have to be very careful। And coach जो है, जो Morts is also having a good chart। So I would say that yes, they are a very very firm favorite to reach the semi-final for sure। World Cup भी जीत सकते हैं वो। Okay, and the last team, and this is not a team's name जो Indians सुनना पसंद करेंगे, but then I would I have to say that this that, right? Yeah, you know what I'm talking about। See, basically पाकिस्तान का जो कैप्टन जो होते हैं ना, इनका जो बर्थ डेट जो होता है, उसमें हमें हमेशा यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि बाबर आजम का ऑफिशियल ईयर ऑफ बर्थ इज 1994, लेकिन ये बात बताना मुश्किल है कि वो 1994 के ही जन्म में है। ओके, वो हो सकता है कि वो 1992 के हो, ठीक है, या
पॉसिबल है कि वो 1990 की भी हो. हाँ. ओके, बहुत सारे लोगों का उनका मतलब कुछ पाकिस्तानी प्लेयर से मैंने बात किया था, उन्होंने कहा कि इन्हें हमको खुद पता नहीं, दे सेड कि नहीं, आई डोंट नो व्हेन आई वाज बोर्न, कि उनका मदर को भी नहीं पता था. सो देन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो लोग वहाँ पे फजिंग बहुत होता है, सो 2-3 साल तो वैसे ही नॉर्मल है वो. सो ये अगर नॉर्मली वो 1990-91 के हैं तो देयर आर सम चांसेस. सो पाकिस्तान डेफिनेटली हैज अ गुड चांस टू बी इन द सेमीफाइनल्स, आई वुड से दैट. सो दीज आर द टॉप 3 टीम्स, आई वुड से. इंडिया अगर नहीं जीतता है तो किसी कारणवश इंडिया नहीं जीतता है, तो सपोज मान लो कि अब रोहित शर्मा इंजर्ड हो गया, आई एम जस्ट गिविंग इट आउट, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बट इन केस ही इज नॉट द कैप्टन, देन प्रोबेबली आई वुड से दैट दीस 3 teams has got some chance to. Yeah, okay, so look, is there any chance, because जो व्यूअर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो थोड़े इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा इंडिया पाकिस्तान क्लैश के. सो इज देयर एनी small chance that India Pakistan face each other in the finals? I would say that there is a very high chance. There is a very high chance. Yeah, very high chance. Yes. Okay. Very high chance that. In fact, कुछ I was talking to some of my cricketing friends, क्योंकि हमेशा like astrology knowledge and cricket knowledge को पूछते रहना चाहिए. So some journalist, one journalist told me that there is a possibility that India Pakistan can even meet thrice in the tournament. Yeah. Mathematically possible ऐसे बोल रहे हैं वो. Okay, so maybe in the for Asia Cup, I guess that wasn't. That isn't possible. Yeah, because we had 2 games in Super 4s, one in the group stage, and then was a possibility to have a clash in the finals, but that didn't happen. So you're saying it's not possible? No, because it's round. India playing Pakistan once in the league stage, and then probably either in the semis or in the finals. Semi-finals or in the finals, correct. So then I would say that yes, definitely there is a very high possibility that India can win. And अगर हम 2 बार मिलते हैं तो India will win the most important game. जो game consequential है, India will definitely win. And India can, I mean, we talk about India Pakistan बाद में हम लोग बात करेंगे. बाद में बात करेंगे. We'll talk about that later, okay? But the chances of India Pakistan meeting is very high. Is very high. And also India England in the finals, और दोनों में से एक ही. India England finals. I mean, you can't say that. See, India is going to be finalists. India is going to be the finalist. India is going to be finalists for sure. Okay, who is going to be the next other finalist? Let's see. That depends. So we've already talked about the winner, who has a high possibility of winning this World Cup 2023 World Cup. बहुत लंबा ड्रॉट भी हो गया यार, 10 साल हो गए हैं, ICC ट्रॉफी आए हुए, अब आ जानी चाहिए. Well, लोगों, I'll एंड दिस एपिसोड यहाँ ही पे अभी, क्योंकि बहुत सारी अभी हमें बातें करनी है और हमारे को एपिसोड्स करने हैं, तो मैं इस वाले एपिसोड को यहीं रोकूंगा एंड वापस जुड़ेंगे आपके साथ, वापस और सारी बातें करेंगे. इंडिया पाकिस्तान क्लैश कैसे हो सकता है, कौन मैन ऑफ द सीरीज हो सकता है, कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले सकता है, इंडिया के लिए कौन परफॉर्म करेगा, इंजरी से आने वाले प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे इंडिया के लिए, वो सबके बारे में हम बात करेंगे और एपिसोड में. वेल, फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस शो एंड आई हैड अ लवली सेशन विद यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Soumya, for inviting me, and I had it's my pleasure too. Thank you. We'll see you again.